میں اکثر امی کے ساتھ ایک بابا صاحب کے پاس دعا کروانے جاتی تھی۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر ایک انجانے سے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ بابا کی عمر اس وقت میرے والد سے زیادہ ہو گئی، لیکن جو طمانینت ان کے چہرے پر رہتی تھی وہ ٹھنڈی چھاؤں کے جیسی تھی۔ اس طمانینت سے میرے باپ کا چہرہ محروم تھا۔ وہ دال روٹی کے چکر میں پھنسے رب سے شکوے کرتے نظر آتے تھے۔ پہلے پہل بابا کے پاس بہت کم لوگ آتے تھے، رفتہ رفتہ اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بابا جی کی کرامات کا چرچا ہونے لگا کہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے ان کا مسکن ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کمیٹی کی حدود میں بنا ہوا تھا۔ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور ہماری چھت سے صاف نظر آتی تھی۔ بابا کی کوٹری کو چھت کی منڈیر سے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ کوٹری کے سامنے صحن اور پھر چاروں طرف کچا احاطہ بنا ہوا تھا جہاں وہ ٹہلتے یا عبادت میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان کو سجدے میں دیکھ کر مجھ کو سکون ملتا تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں شعور کی منازل طے کرنے لگی تو کئی سوالات میرے ذہن میں کل بلانے لگے۔ اکثر سوچتی آخر بابا جی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہوگا، ان کے عزیز رشتے دار کہاں ہوں گے، اور یہ اکیلے یہاں کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کو سردیوں کی سرد راتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ میرا معصوم ذہن ان کے سوالات کے جواب نہ ڈھونڈ پاتا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو بابا نے دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لیا تھا۔ ایک دن اماں کو پتا چلا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ مجھے لے کر فوراً وہاں گئی۔ بابا واقعی بیمار بستر تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اماں گھر سے یخنی بنا کر لے گئی تھی۔ میں نے بابا جی کا سر دبایا، وہ بخار میں جل رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھے اور اماں آپ کی سگی بہن جیسی ہیں، جب کوئی تکلیف ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بابا نے کہا ہاں میری بچی تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، اسی لیے تم ایسی باتیں سوچتی ہو۔ میری تم کو نصیحت ہے کہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا، اللہ تم کو بھی روحانی طاقت عطا کرے گا۔ خوب پڑھائی پر توجہ دینا، ہر برائی سے دور رہنا اور تعلیم حاصل کرنا، تمہارے گھر سے غربت، دکھ اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بیٹی میں بھی جاہل مطلق نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بس حالات نے مجھے ایسے بنا دیا کہ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا۔ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ نہ سہ سکا تو دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ جب بابا نے خود مجھے دل کی بات کہہ دی تو میری ہمت ہوئی، تبھی میں نے کہا بابا آپ نے مجھے سچے دل سے بیٹی کہا ہے تو آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ دنیا اور اپنے تمام رشتے چھوڑ کر یہاں اس مقام پر آ گئے۔ تم وعدہ کرو کہ جو میں اپنے بارے میں بتاؤں تم کسی سے نہ کہو گی۔ میں نے وعدہ کیا تو انہوں نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے بیٹی میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں روایتوں کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ تعلیم حاصل کرنے پر شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ تعلیم ان کے ذہنوں کو منور کر دیتی تھی جو عام روایتوں کے غلام کو گوارا نہ تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے والد صاحب نے تمام مخالفتوں کے باوجود تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ والد صاحب نے اپنے شوق کے بل بوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور شہر آ گئے۔ وہ کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے مگر یہ خواہش ہی رہی کیونکہ ہمارے دادا نے عزت کا معاملہ کہہ کر ان کی شادی اسی لڑکی سے کرا دی جس سے وہ منسوب کیے گئے تھے۔ والدہ ایک سیدھی سادی خاتون تھی، ہیرا پھیری سے ان کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ شادی کے بعد میرے والد صاحب نے صبر کر لیا اور اماں کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی بھرپور صحیح کرنے لگے۔ اماں نے بھی کوشش کی اور خود کو کافی حد تک بدل لیا۔ میرے بھائی بھی تعلیم یافتہ اور ایک سرکاری افسر تھے۔ وہ عمدہ خیالات کے مالک بھی تھی۔ گھر کا انتظام و مالی طور پر استحکام ان کی فراست اور کمائی پر تھا۔ ان کی شادی بھی والد صاحب نے چچا کی بیٹی سے کرا دی۔ یہ لڑکی تعلیم یافتہ نہ تھی مگر دادا کی خواہش پر بھائی منصور کو اس سے شادی کرنا ہی پڑی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کی عورتیں ان پڑھ مگر مرد تعلیم یافتہ تھے۔ بھابھی نے آتے ہی ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا مگر میرا بھائی صبر اور سکون سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ سمجھاتے رہتے کہ تم صبر و تحمل سے رہنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات ہے مجھ سے کہہ دیا کرو، میں خود تمہاری پریشانی دور کر دیا کروں گا۔ بھابھی پر ان کی باتوں پر کا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے خود کو ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنا ضرور شروع کر دیا تو ان کا رویہ ہم سے بہتر ہونے لگا۔ والد صاحب نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ اس وقت میں تندہی سے تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا زاد کی شادی تھی اور ہمیں گاؤں جانا تھا۔ میں نے 12ویں کے پرچے دیے، ابھی پریکٹیکل باقی تھے، چنانچہ کتابیں ساتھ رکھ لی کہ گاؤں میں شادی بھی اٹینڈ کر لوں گا اور جب وقت ملے گا پڑھائی بھی کر لوں گا۔ گاؤں جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرجوش ہوا کرتا تھا۔ مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے اور ہمارا گاؤں تو پہاڑ کے دامن میں واقع تھا جو ہماری بستی پر ایک خوبصورت صاحبان کی مانند سایہ پھیرتا تھا۔ ہم شادی سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے اس لیے آرام کے لیے اندر چلے گئے، لیکن میں گھر میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، میں پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میری رشتے داروں سے بھی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی میں مغرور چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری فکر ایک لڑکی سے ہوگی۔ آس پاس کے ماحول کا اثر تھا یا واقعی وہ خوبصورت تھی؟
उजली उजली दूध जैसी सफेद रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और चेहरे पर हया की सुर्खी। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया और वो नागवारी से मुझे देखते हुए मेरे पास से गुजर गई। मुझे उसके कदोखाल मानूस लगे। मैंने वहीं दरख्त से टेक लगाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का रुबागो महसूस हुआ। आंखें खोली तो सामने मेरे चचाजाद भाई खड़ा था, जो मुझे घर में ना पाकर ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। उसने नहायत गर्म जोशी से मुझे सीने से लगा लिया। हम उसी की शादी में यहाँ आए थे। हम बातें करते हुए घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही मैं हैरत और खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि सामने वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे पहाड़ पर मिली थी। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने जमान से पूछा, ये कौन है? वो बोला, तुम नहीं जानते, ये मेरी छोटी बहन बख्ताबर है। जब तुम लोग शहर चले गए थे तब ये बहुत छोटी थी, तभी तुम इसको नहीं पहचान सके। मैंने उसको बचपन में देखा था, तभी मुझे उसके खदोखाल जाने पहचाने से लगे थे। उसी दिन फैसला कर लिया कि मेरी शरीक हया यही लड़की होगी। जबकि भाभी के कहने से भाई साहब ने सोच रखा था कि वो मेरी शादी अपनी बीवी की छोटी बहन से करवा देंगे। बेशक मैं बख्तावर को ना देख लेता तो मैं अपने भाई की बात को ना टालता। मैं जो किताबें ले गया था वो वैसे ही ले आया। 2 रोज बाद मेरा प्रैक्टिकल था। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट बनाया था। शादी के 15 रोज बाद जमान अपनी बीवी के साथ हमारे घर आया। वाले साहब ने उनकी दावत की थी। जमान ने मुझे बताया कि वो शहर में कोई कारोबार करना चाहता है, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत काश्तकारी से जिंदगी बसर करना नहीं होती। मैंने कहा, तुम शहर आ जाओ। चचा ने मुख्तावर को प्राइमरी तक तालीम दिलवाई। इसकी भी ख्वाहिश थी कि शहर में तालीम हासिल करे। कुछ दिनों बाद जमान गाँव से कुछ जमीन बेचकर सरमाया लिया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैंने भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। उन दिनों मैं एफएससी कर चुका था और फारिग था। मेडिकल के लिए भी दाखिले शुरू नहीं हुए थे। बाबा जान ने कारोबार में मेरी दिलचस्पी देखी तो अपने सेठ से मुझे कुछ सरमाया लेकर दिया कि मैं भी जमान के साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। हमने मिलकर मार्केट में कपड़े और बरके आलात की दुकान खोली। कारोबार अल्लाह के फजल से चल पड़ा। अब जमान घर वालों को भी शहर ले आना चाहता था। वो अपने कुंबे की रहाइश के लिए मकान ढूंढने लगा। मैं चाहता था उसे कहीं हमारे घर के नजदीक मकान मिल जाए। हम एक कदीमी मोहल्ले में रहते थे और हमारा घर भी दादा परदादा के जमाने से बना हुआ था और पुराना था, लेकिन मजबूत और वसीह था। लिहाजा वाले साहब ने कहा कि तुम लोग फिलहाल हमारे मकान के एक हिस्से में रहो। अगर तंगी महसूस हो तो इत्मीनान और सुकून से अपने लिए रहाइश ढूंढ लेना। मैंने भी जोर दिया तो उसने हमारी बात मान ली और अम्मी जान ने मकान का आधा हिस्सा जो तकरीबन खाली रहता था उनको रहने के लिए दे दिया। हम सब खुश थे कि हमारे करीबी रिश्तेदार आ गए थे और घर में रौनक हो गई थी, लेकिन भाभी खुशी नहीं थी। वो ऊपरी ऊपरी रहने लगी। मैं अब नतीजे के इंतजार में था और कारोबार पर भी तवज्जो दे रहा था। बाबा जान हैरान थे कि एक लाहौरी लड़का इतनी जल्दी कैसे हमारी जिंदगी में जज़ब हो गया। मेरा रिजल्ट अच्छा आया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ठानी। कॉलेज खुश थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरे लिए मेडिकल में दाखिला कुछ मुश्किल ना था। मैं सोच विचार में था कि क्या करूं। मेडिकल में दाखिला लेता तो वाले मेरी शादी 4-5 साल तक मुलतवी कर देते। इस मुद्दत में मुमकिन है कि बख्तावर के वालिदैन उसकी शादी कहीं और कर देते। वो सोचने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लेने का ऐलान किया और वालिद साहब ने कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन जमान ने मुझे ऐसा ना करने दिया। उसने कहा कि तुमको पढ़ाई के बाद जो वक्त मिले कारोबार को देना, मगर पढ़ाई मत छोड़ो और कॉलेज में दाखिला जरूर लो। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे बाबा भी यही चाहते थे। सो मैं मायूस हो गया। सोचा अपना मसला किससे बताऊं। मैंने हिम्मत करके भाईजान को दिल की बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। कहा, रमीज खान, इसमें मेरे परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी शादी बख्तावर से करवा दूंगा। मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया और भाईजान ने वालिद साहब से बात कर ली। वो खुशी से मानकर बख्तावर का रिश्ता उसके वालिद से मांग गया। उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं खुद को दुनिया का खुश नसीब लोगों में समझने लगा, लेकिन भाभी बहुत भरम हुई। कहने लगी कि ये लोग यहाँ आगे यही मंसूबा बनाकर थे। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहन के लिए पहले से मेरे वालिदैन से बात हो चुकी है। अब आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? भाईजान ने बीवी को समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा है, वो तुम्हारी बहन से शादी पर राजी नहीं है। वो बख्तावर से शादी करना चाहता है। क्या होगा अगर उसने तुम्हारी बहन को ज़हनी तौर पर कबूल ना किया? तुम आइंदा की सोचो। कैसरा के लिए कोई और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जबरदस्ती उसे हम रमेश के पल्ले किसी तरह बांध सकते हैं। वो खामोश तो हो गई, लेकिन लावा अंदर ही अंदर पकने लगा। कुछ दिन बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। अपने वालिद के समझाने से भाभी भी नॉर्मल हो गई। उनका रवैया एकदम बदल गया। वो मेरी शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेने लगे। अब जमाने ने यही मुनासिब समझा कि अलग मकान ले लिया जाए ताकि लड़की को अपने घर से रुखसत करें। मेरी शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। बख्तावर मेरे वालिदैन, भाभी और खास तौर पर मेरे बड़े भाई को बहुत इज्जत और खिदमत करती, जिस पर भाई भी उसकी तारीफ करते ताकि उसका दिल खुश हो। इस बात ने भाभी के दिल में हसद को जन्म दिया और उसके दिल में बख्तावर के लिए नफरत की गिरा को मजबूत किया। भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। लिहाजा मेरा ज़हन इस तरफ गया ही नहीं कि वो मेरी बीवी की नफरत में मरी जा रही है। मैं दिन में पढ़ाई में मसरूफ होता, शाम को जमान के पास दुकान पर चला जाता। मैं हर चीज़ को नॉर्मल ही ले रहता और बख्तावर की आदत चुगलियां करने की ना थी। उसके लबों पर कभी किसी के लिए शिकायत के 2 लफ्ज भी ना आते थे। वो बहुत साबिश शाह की लड़की थी। घर में हर कोई खुश था। बज़ाहिर तो भाभी भी खुश नजर आती थी, मगर दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई भी भाभी की मकारी को ना समझ सका, हालांकि उनका शोहर भी उनकी अदाकारी से
धोखा खा गया। भाई हर वक्त कहते मुख्तावर के कदम मुबारक साबित हुए। कारोबार में तरक्की के साथ मेरी बीवी को भी अकल आ गई है। मैं पढ़ाई और कारोबार में इतना मसरूफ था कि अपनी बीवी के लिए कम वक्त निकाल पाता था, मगर उसने फिर भी गिला ना किया। एक दिन मुख्तावर की तबीयत खराब हो गई। घर में अम्मी और भाईजान थे और उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे की नबीज सुनाई तो घर भर में मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बड़े भाईजान तो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। भाभी उसका बहुत ख्याल रखती थी। मैं मुतमईन था कि घर में उसे संभालने वाले हैं। वक्त गुजर गया और मैं एक खूबसूरत बेटे का बाप बन गया। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुख्तावर उसे जन्म देने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। बच्चे को माँ का दूध पिलवाने की बहुत कीची की, मगर उसने पीने से इनकार कर दिया। भूख से भी लगता, मगर माँ का दूध उसे बदमजा लगता है, क्योंकि पैदा होते ही भाभी ने उसे फीडर लगा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि इसे गाय का दूध पिला सकते हैं। बच्चे को गाय के दूध का जायका पसंद आ गया। यूं 3 माह में बच्चे ने सेहत पकड़ ली। भाभी ने दूध उबालते और रात को सभी को पीने को दिया करती थी। वो मेरे बच्चे का फीडर बनाकर उसे देती और मुख्तावर को भी अपने हाथ से पिलाती। कहती कि तुम तो एक की जगह 2 गिलास पिया करो। हम सब उनकी इन इनायतों और मोहब्बत के शुक्रगुजार थे। वो घर की बड़ी बहू थी। मुख्तावर बच्चे को संभालती और भाभी घर के बेशतर काम कर ली। एक दिन वो हस्बे मामूल ताज़ा दूध को जोश दे रही थी कि छत से एक बड़ी सी जहरीली छिपकली उबलते दूध में गिर गई। ये सब भाभी की निगाहों के सामने हुआ। उन्होंने दूध फेंक दिया। घर की मुलाजमा भी साथ खड़ी थी। रात होने वाली थी। मुलाजमा काम समेट चुकी थी। उसके जाने का टाइम हो रहा था। उसने धोने के लिए पतीले का ढक्कन उठाया तो उसमें कुछ दूध बहता था। वो बोली, भाभी आपने सारा दूध नहीं गिराया, इसमें तो छिपकली पड़ी है। उसने कहा कि पतीला गर्म था, मेरे हाथ जलने लगे थे, तभी रख दिया, अभी गिरा देती हूँ। तुम जाओ, मैं खुद दूध गिराकर पतीला धो दूंगी। तुमको देर हो रही है। मुलाजमा चली गई। अब भाभी ने जहरीले दूध को फिर से उबाला देकर छाना ठंडा किया। सब घर वालों को सही वाला दूध ठंडा करके पीने को दिया, मगर मेरी बीवी और बच्चे को वही जहरीला दूध चीनी डालकर पीने को दिया। मुख्तावर को जायका बुरा सा लगा। उसने आधा गिलास पीकर वापस करना चाहा तो भाभी ने इसरार करके जबरदस्ती पिला दिया। बच्चे को भी उसी दूध का फीडर अपने हाथों से पिला दिया। रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी आई। अस्पताल लेके जाने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। इस रात मैं मेडिकल कॉलेज में था। वह घर में कोहराम बरपा था। मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही जिंदगी की बाजी हार चुके थे। किसी को इल्म नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। मेरे सास ससुर ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि हमारी बेटी की लाश की बेरुमती होगी। वो गांव के लोग थे, पोस्टमार्टम की अहमियत को नहीं समझते थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मुझे शक था कि उनकी मौत जहर खुर्दनी से हुई है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे मर सकते थे। जाहिर है दोनों ने एक सी खुराक ली होगी, वरना दूध तो सारे घर वालों ने पिया था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। बड़ा घर का मामला था। जमान ने भी मुझे सब्र की तलकीन की और खामोश करा दिया। कुछ दिन घर की फिजा सोगवार सी रही। एक बार मुलाजिम ने मुझे मौका पाकर चुपके से बता दिया कि उसने रोज दूध उबालते एक बड़ी सी जहरीली छिपकली छत से केले के अंदर टपक पड़ी थी। भाभी ने दूध तो सामने मेरे गिरा दिया, मगर उससे आगे वो ना बोल पाई। मैंने लाख पूछा, कहने लगी, साहब जी इससे आगे मैं नहीं जानती, मैं तो घर चली गई थी। जो बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी कैसे कह दूं। किसी बेगुनाह की गर्दन मेरे शक की वजह से फंस गई तो कौन मुझे जिंदा छोड़ेगा। मुलाजमा ने उस दिन के बाद हमारी मुलाजमत छोड़ दी और अपने गाँव जाने का कहकर न जाने कहाँ चली गई, मगर कहानी का खुलासा बता गई। कहते हैं कि आपका राह इशारा काफी है। मेरे दिल का बोझ मजीद बढ़ गया। मैंने ये बात भाईजान से कह दी। उन्होंने बीवी की गर्दन दबोची। मिलाकर भाभी ने भी इकरार कर लिया कि उन्होंने गलती से छिपकली वाला दूध बख्तावर और बच्चे को पिला दिया था, क्योंकि वो बकिया दूध को गिराना भूल गई थी। ये सरासर झूठ था। भाई ने भी इतने बेवकूफ ना थे। वो तैश में आ गए और उन्होंने भाभी को क्रिकेट के बल्ले से इतना मारा कि वो जाँ बहक हो गई। मैंने जब उनके कमरे से चीख सुनी तो मैं दौड़कर गया और ऐसा मंजर देखा कि दिल दहल गया। बेशक मैं मुख्तावर से मोहब्बत करता था, मगर अपना भाई भी मुझे अजीज था। मैंने उनको खुदा का वास्ता देकर ड्यूटी पर भेज दिया। वो चले गए तो मैं हाथ में बल्ले लिए पुलिस स्टेशन जाकर इतरारी जुर्म किया कि मेरी बीवी और बच्चे की मौत हो गई। मुझे शक था कि भाभी ने भी उनको जहर दिया। इसको बदला लेने के लिए मैंने उनके सर पर बैट मारकर हलाक कर दिया। मेरी नीयत उन्हें जान से मारने की ना थी, मगर झगड़ा बड़ा तो तैश में बैट उनके जोर से लग गया। गर्ज इस तरह मैंने अपने भाई की जगह जेल में चला गया। मुझे 7 बरस की सजा होगी। सजा के बाद जब मैं जेल से निकाला तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कैद में खुदा से करीब हो गया। मुझ में कत्ल के कातिल कहलाने की हिम्मत थी। मैं दूसरे शहर चला गया और वहाँ एक डॉक्टर की क्लिनिक में मुलाजिम हो गया। एक दिन जी में से हाई के एक जंगल में वतन तनहा रोज शब व बसर करने लगा। अल्लाह ने अपनी जानी मेरे दिल को खींचा और मैं दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहने लगा। प्यास लगती तो नदी से पानी पी लेता, भूख लगती तो जंगली फलों पर गुजारा कर लेता। मैं इबादत में सुकून पाने लगा। एक दिन महकमा जंगलात वाले आए और मुझसे तफ्तीश करने लगे। इस वक्त तो वो 2-4 बातें करके चले गए, लेकिन मुझे डर था ये तो दोबारा आएंगे। मैं घर वालों को एक बार फिर किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता था, लिहाजा यहाँ शहर में आ गया और झुग्गी बनाकर रहने लगा। इर्द गिर्द गुजरते लोग मुझे इबादत में मशगूल देखते तो समझते कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा है। वो मुझसे दुआ कराने को आने लगे और कुछ ना कुछ खाने को दे जाते। इंसान के दुख तकलीफें मुश्किलात तो अल्लाह पाक दूर करता है, लेकिन वो यही समझते थे कि मेरी दुआओं में तासीर है जिससे उनकी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। रफ्ता रफ्ता लोगों में मेरी शोहरत फैलने लगी कि यहाँ कोई नेक बाबा है जिसकी दुआ कबूल होती है और मुराद मिल जाती है। यूँ लोग मेरे पास दुआ कराने आने लगे। वो मेरे लिए नजराने के तौर पर खाने पीने की चीज़ें या कुछ रुपये दे जाते हैं जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी को काफ़ी होते हैं। मैं ना तो किसी से नजराना लाने को कहता और ना रकम का सवाल करता। अब झुग्गी की
جگہ یہ کوٹری بن گئی ہے، ایک چارپائی، پانی کا ایک گھڑا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اور نہ مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی۔ اللہ خود میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر لمبی سزا کاٹی۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے، بھائی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، امی بھی رونے لگی۔ اس وقت واقعہ کے 6 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹری میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک بندوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے، اور جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہے اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ہی ملتا ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ کے راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔